Hello everyone and welcome to the channel. So today we are having a discussion on non-aligned movement. Now most of you might know why it is in news and stuff like that, but all those who are new here, we'll have a discussion on that topic. Now, for those who are new to the channel, don't forget to subscribe to the channel. And the topic of today, as I told you, is going to be non-aligned movement. We are going to talk about कि ये क्यों न्यूज़ में है, कैसे शुरू हुआ था non-aligned movement या क्या objectives हैं इस non-aligned movement के, what is its role right now in the current political environment going on, क्या role play करता है non-aligned movement, and then we are going to talk about India's role in it. India का क्या role रहा है non-aligned movement के अंदर. Okay, so शुरू करते हैं session. First of all, we are going to begin in why in news. News में क्यों है या हम क्यों इसके ऊपर discussion करें. So the first thing or the major thing is that Indian Prime Minister participated in the video conference meeting of non-aligned movement. Now right now जितने भी बड़े organizations हैं सबकी video conference movement meetings हो रही हैं. Reason being COVID. So COVID-19 की वजह से सारी meetings have been shifted to video conferencing mode. So ऐसे ही N.A.M की भी meeting हुई थी recently on COVID crisis, on which Indian Prime Minister participated. Now why it is in news is because पहली बार है कि the Prime Minister has participated in the meeting since 2014. 2014 के बाद पहली बार है कि Indian Prime Minister ने participate किया हो. 2014 में भी it was the Prime Minister Narendra Modi ji, and in this year, that is 2020, maybe he is the one. Now between years में किसने participate किया? Between 2014 and 2020, N.A.M representative for India was the vice president. So head of the nation की जगह vice president ने इंडिया को represent किया था in between 2014 to 2020. And that is why it is in news, first of all, because the Prime Minister did not participate in these recent meetings. Title of the meeting या meeting का objective क्या था या किस चीज़ के ऊपर based थी meeting? It was on We Stand Together Against COVID-19. COVID-19 के scenario को लेकर के G20 की भी अभी recently meeting हुई थी, and now N.A.M meeting was also done. Now most of the questions that are arising is कि non-aligned movement या N.A.M है क्या, what is its objective, why is it so important for India. So उसको देखने के लिए we'll have a look at about N.A.M है क्या उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. Most of you might get an idea from this itself. 1961 में बेलग्रेड में इसे बनाया गया था, which was then the part of Yugoslavia, now it is a part of Serbia. तो बेलग्रेड उस टाइम पे यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था और यहाँ पे 1961 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द हवाना डिक्लेरेशन. हवाना डिक्लेरेशन ने इसे और स्ट्रेंथन कर दिया इसके ऑब्जेक्टिव्स को. तो हवाना डिक्लेरेशन के बाद 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसे एस्टैब्लिश किया गया था. क्यों बनाया गया था? At that time there were two major powers going on in the world. Power tussle between United States of America and USSR. USA और USSR के बीच में power tussle was going on. These were the two most powerful countries of the world. Now वो कंट्रीज जो इनमें से किसी की साइड नहीं होना चाहते, दे वांटेड अ पीसफुल गोइंग ऑफ देयर कंट्री, अपनी कंट्री को पीसफुली रन करना चाहते थे, दोनों में से किसी की साइड नहीं थे, दे वर अनबायस्ड. उन्होंने N.A.M बनाया, दैट इज मोस्टली द डेवलपिंग नेशंस वर अ पार्ट ऑफ इट. तो उन्होंने ये क्यों बनाया? बिकॉज दे डिड नॉट गो वांटेड टू गो विद यूएसए, उनको यूएसए के साथ नहीं जाना था, लेकिन उन्हें यूएसएसआर के साथ भी या सोवियत यूनियन के साथ भी नहीं जाना था. दे वर टुगेदर विद बोथ, दोनों उनको बेनिफिट करेंगे, वो दोनों के साथ है. दे वर वन ऑफ दोस ग्रुप. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अनबायस्ड ग्रुप बनाएंगे जिससे कि हम लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके. यूएसए और यूएसएसआर की साइड हमें दोनों में से किसी के साथ ना होना पड़े. तो उसके लिए नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया गया था. एंड ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है अब आफ्टर यूनाइटेड नेशंस के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म यू कैन से ग्रुप है वो N.A.M है.
How many members are there? 120 members are there with 17 observer countries and 10 observer organizations as well. किस किसने फाइंड किया था ना? फाउंडर्स में कौन थे? दे वर ऑल द डेवलपिंग नेशंस, उस टाइम के इमर्जिंग पावर्स एंड डेवलपिंग नेशंस, दैट इज इंडिया. एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू जी. देन इजिप्ट, गाना, यूगोस्लाविया एंड इंडोनेशिया. ये 5 कंट्रीज थे जिन्होंने NAM बनाया. एंड 25 कंट्रीज वर द इनिशियल मेंबर्स. शुरुआत में 25 मेंबर्स थे NAM के. सो 25 मेंबर्स के साथ शुरुआत हुई NAM की. एंड 5 फाउंडर कंट्रीज मानी जाती हैं NAM की. एंड दिस इज द लोगो ऑफ NAM. नाउ करंट प्रेसिडेंट कौन है या प्रेसाइडिंग कंट्री कौन सी है? तो करंट प्रेसाइडिंग कंट्री अजरबैजान है. फ्रॉम 2019 टू 2022, 19 से 22 की सारी मीटिंग्स अजरबैजान ऑर्गेनाइज करता है. इट इज द प्रिसाइडिंग कंट्री ऑफ इट. इंडिया भी प्रिसाइडिंग कंट्री रह चुका है. 1983 टू 86 में इंडिया प्रिसाइडिंग कंट्री था फॉर NAM. फॉर्मर मेंबर्स ना, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया NAM फॉर सर्टेन रीजंस ऑफ देयर ओन. वन ऑफ द ना, इन तीनों ने साथ में छोड़ा था सिप्रस, माल्टा एंड पोलैंड. इन्होंने बाद में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लिया. सो सिप्रस, माल्टा एंड पोलैंड, इन तीनों ने NAM छोड़ दिया था इन 2004. यूगोस्लाविया, दो इट वाज अ फाउंडिंग नेशन, फाउंडिंग कंट्रीज में से था, फाउंडर्स है, लेकिन इसने बाद में छोड़ दिया था. 1961 से 64 प्रिसाइडिंग कंट्री रहा ये. 1989 से 1992 प्रिसाइडिंग कंट्री रहा. और 1992 में फाइनली यूगोस्लाविया ने छोड़ दिया. तो एग्जिट जो लिया था वो 1992 में लिया था. ये दोनों ईयर इसके प्रेसिडेंट ईयर्स हैं जिस टाइम ये प्रेसिडेंट रहा NAM का. बॉस्निया एंड हर्जेगोविया, ये दो हैं जो अब NAM के पार्ट है. यहाँ यूगोस्लाविया हैड स्प्लिट इनटू वेरियस पार्ट्स. तो बॉस्निया एंड हर्जेगोविना आर द 2 कंट्रीज जो भी पार्ट हैं NAM के. वेयर एज सर्बिया, जो बेलग्रेड है, जहाँ पे बेलग्रेड है, सो सर्बिया जो फाउंडिंग प्लेस है NAM की, बेलग्रेड वाज द फाउंडिंग प्लेस, वो सर्बिया में है. और सर्बिया ऑब्जर्वर है. ये पार्टनर, ये मेंबर नहीं है, ये एक ऑब्जर्वर है. एंड सर्बिया के अंदर आता है बेलग्रेड विच वाज द फाउंडिंग प्लेस ऑफ NAM. नाउ यूक्रेन ने अपना ऑब्जर्वर स्टेटस ड्रॉप कर दिया, यानी अब वो ऑब्जर्वर भी नहीं रहा है. ठीक है, दीज आर सर्टेन कंट्रीज विच हैव लेफ्ट. ना नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया क्यों या इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, यू कैन से किस लिए बनाया गया, क्या ऑब्जेक्टिव था माइंड्स में उस टाइम के लीडर्स के कि उन्हें NAM बनाना पड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल, now if we talk about principles, there are 5 principles of non-alignment. Basically there are multiple principles, but what it runs on is the 5 basic principles that we have. First is mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. एक दूसरे की जो बाउंड्रीज हैं, एक दूसरे कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं, उन सबको रिस्पेक्ट करना, उन बाउंड्रीज की इज्जत करना, एंड हेल्पिंग देम इन द periods of problems. You can say जब भी प्रॉब्लम हो तो अदर कंट्रीज आर देयर फॉर देम. तो एक दूसरे की यूं नहीं है कि एक दूसरे की कंट्रीज इन्वेड कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं, या उनके जो भी रूल्स एंड लॉज हैं उनको ऑल्टर करने में, या उनकी इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर कर रहे हैं. नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है उनकी सॉवरेनिटी की, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हो जाना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे कंट्रीज से अपोज कर रहे हैं तो यू आर लॉन्चिंग अटैक्स ऑन देम एंड स्टफ. नो, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, दैट्स व्हाट वी टोल्ड. कि अगर वो कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग ऑफ अ पॉलिटिकल इशू, ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री उठे एंड उनको उनकी पॉलिटिकल इश्यूज में हेल्प करे, अपने ओपिनियंस दे एंड स्टफ. नो, नो इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, चाहे वो कुछ भी हो. until unless not asked, you're not supposed to tell. इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं सब बराबर हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब भी जरूरी होगा. एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी सारी कंट्रीज साथ में एज अ फैमिली दे आर गोइंग टू लिव, एज अ
यूनिट दे आर गोइंग टू लिव। तो ये बेसिक 5 प्रिंसिपल्स हैं जो ले डाउन किए गए थे नॉन अलाइनमेंट के लिए। इसके अलावा और भी है, बट दीज 5 सम अप द एंटायर आइडिया ऑफ इट कि ये सब साथ है, साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना है, एक दूसरे को पिंग नहीं करना है जब तक कि सामने वाला बोलता नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो नाउ वर्किंग टूवर्ड्स द मेजर इश्यूज लाइक climate change and sustainable development. So ये कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे they are working towards and they are moving towards in life and as an idea of a whole. लेकिन ये कुछ principles हैं, these 5 are the basis principle of it, कि इन चीजों के based ये जो organization है ये बनाई गई थी। So now हमने देखा कि इनके प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे बनी, कौन से कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, एंड हाउ डिड इट नर्चर इटसेल्फ। बट आज की टाइम पे क्या जरूरत है? ना तो अब यूनाइटेड स्टेट्स सिंगल मोस्ट सुपर पावर है, यूएसएसआर ब्रेक हो चुका है, नाउ रशिया एंड चाइना आर कंबाइंड एज ए टुगेदर मूविंग टुवर्ड्स अ सुपर पावर। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द रिलेवेंस ऑफ इट? आज के वर्ल्ड में इस एनएएम का क्या रिलेवेंस रह गया है? First of all, it has a great role in world peace क्योंकि after United Nations, it is the second largest organization. United Nations के बाद second सबसे बड़ी organization है जिसमें approximately 120 member countries हैं, and वो जो member countries है they make 2/3 of United Nations. United Nations का 2/3 portion NAM countries है, so they have a great role in world peace. Next, they have a very unique thing, territorial integrity and sovereignty. एक दूसरे की टेरिटरी की इज्जत करते हैं and they do not interfere in the territorial matters. So that is the basis of the relevance and that is one of the things which brings it to the most unique organization. प्रोटेक्टर फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, ना तो वो डेवलप्ड है ना ही वो सुपर पावर्स हैं। दोज आर द कंट्रीज व्हिच आर स्टिल मूविंग ऑन। तो एनएएम के अंदर मेजरली कौन सी कंट्रीज हैं? या तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और या अंडर डेवलप्ड है। सो दो तरह की कंट्रीज हैं बेसिकली, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर वर्क करें, उनको ऊपर उठाने में हेल्प करें, उनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करें, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करें। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द आइडियाज एंड द रेलेवेंस राइट नाउ कि हेल्पिंग द कंट्रीज ग्रो टुगेदर, bridge between political and ideological differences existing in the international environment. Internationally इतना ज़्यादा issues चल रहे हैं, there are so many issues going on when it comes to political, when it comes to ideologies, when it comes to principles of the countries. So उन सब के लिए जो gap bridge करने का work है ये NAM कर सकता है because of the huge outreach of it and the idea. Now NAM का जब लोगो देखते हैं, it has the idea of peace itself in the logo. लोगो के अंदर ही it's a white dove which shows peace. Now इंडिया का क्या रोल रहा है एनएएम में? जैसे शुरू में बताया था कि इंडिया हैज बीन वन ऑफ दोज कंट्रीज जो थोड़ा सा पीछे हो रहा है पार्टिसिपेशन में। लास्ट कुछ इयर्स में डिड नॉट इवन पार्टिसिपेट। 2014 के बाद इट वाज पार्टिसिपेटिंग इन 2020। सो हाउ कम सच अ चेंज हैज कम अप, या इंडिया का क्या रोल रह रहा है इन द करंट सिनेरियो? First of all, 1970 तक इंडिया was a very active participant in all the moves. हर moves में इंडिया was one of the primary participants. क्वेश्चंस कहाँ राइज होने लगे? क्वेश्चंस अबाउट इंक्लिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का किस एरिया में इंक्लाइंड है या कहाँ पे मूव कर रहा है, किस तरफ पे ज्यादा फोकस कर रहा है इंडिया, इस चीज के ऊपर देयर आर सर्टेन मूव्स गोइंग ऑन। नाउ इंक्लिनेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आए? इंक्लिनेशन के क्वेश्चंस इस तरह से कि इंडिया इज आफ्टर कोल्ड वॉर एंडेड,
India was one of those countries which has turned out as a global participant in all the organizations. As you can see, Quad का partner भी बना, SCO का भी member बना है. Quad countries you all must be aware of: Australia, USA, Japan, and India. And they all are working. This is an informal organization, and they are working towards कि अगर China एक overpower करने की कोशिश करता है, तो they can take out those strategic things in hand. So Quad countries are a member of 4 countries, which was formed against China. SCO Shanghai Cooperation Organization जो already China lead कर रहा है, उसका भी part है. In 2017 it signed in SCO as well. 2017 में joined SCO. United Nations का part है, he active participant in that. So इसके इन चीज़ों में inclination को देख के and plus US and Russia के साथ इंडिया हैज़ बीन हैविंग रिलेशंस. यूएसए के साथ भी रिलेशंस हैं, एक्सचेंजेस हैं, रशिया के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते रहते हैं, ट्रेड रिलेशंस भी हैं, मिलिट्री रिलेशंस हैं. सो इन इंक्लिनेशन को देख करके एनएएम के अंदर इंडिया का जो रोल है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में आने लग गया. प्लस इंडिया लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बिकॉज in 1962 war and 1965 and 1971 war, NAM ने इंडिया को फेल किया. That means कि it did not support India. जैसे इंडो चाइना वॉर, जो 1962 इंडो चाइना वॉर था, उसके अंदर घाना एंड इंडोनेशिया दे वर सपोर्टिंग चाइना. 1965 एंड 1971 में इंडिया पाक वॉर के टाइम पे दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान. इंडोनेशिया एंड इजिप्ट, इन दोनों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना ज्यादा सही समझा, या दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट. सो इस तरह से दे फेल्ड टू सपोर्ट इंडिया, या दे फेल्ड इंडिया. एंड इसके बाद से इंडिया हैज नॉट बीन मच ऑफ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू क्वेश्चंस ऑन इंक्लिनेशन, देन NAM failed it supporting other countries, and third of all, India became a global country and India is emerging as a global power. So इसके लिए भी 1970 तक इंडिया वॉज अ ग्रेट पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट, फाउंडर तो है ही, बट देन इट टर्न्ड इनटू क्वेश्चंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट NAM, नॉन अलाइंड मोशन के मूवमेंट के ऊपर. यू हैव हैड अ बिट ऑफ आइडिया इंडिया का क्या रोल रहा है. अ बेसिक आइडिया यू ऑल माइट हैव गॉट अबाउट इट. सर्टन क्वेश्चंस डू अराइज कि प्रेजेंट रेलेवेंस कम हो रहा है, या प्रेजेंट में वो इतना अपस्टैंड कर पाएगा या नहीं. बेसिकली अगर NAM इस तरह से बढ़ता है कि वो करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो को लेके चले, करंट सिचुएशन को या करंट आउटगोइंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेके चले, क्लाइमेटिक एक्शंस को लेके चले, तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट कैन डू अ लॉट इन इट. बट it needs to evolve. That's right, it needs to evolve. And with this we shall wind up the session. I hope NAM के बारे में काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी, and the role of India, which was quite in question. So I hope you get a bit of an idea about NAM, and I hope it is helpful for all of you to understand it. We'll meet you in next video. Until then, goodbye, take care, and have a great day.